Morning everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B1. Our subject is English grammar and in today's video I will explain you about worksheet 10. So before starting the work, like always, what you all have to do, you all have to mention today's date in your copies, that is 5 November 2020. With this you will mention online classwork in your copies, and with this you will mention lesson number 19 in your copies, and the topic of the lesson is relative clauses. So the name of the lesson is not mandatory to mention, because as you all know that yesterday we have started the lesson and we have done some definitions and exercises related to this lesson, and in today's video I will explain you first of all the remaining definitions. So the first definition is of defining relative clause. So the definition is, it is the clause on which the sentence depends for completing its meaning. ये वो clause होती है जिस पर sentence अपना meaning complete करने के लिए depend करता है, and it gives us essential information about the noun वी आर टॉकिंग अबाउट, और ये उस नाउन के बारे में हमें बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देती है जिस नाउन के बारे में हम मेन क्लॉज में बात कर रहे हैं. इट यूजुअली कम्स आफ्टर द नाउन, और ये उसी नाउन के तुरंत बाद आती है अक्सर. एग्जाम्पल इज, आई नो अ पर्सन, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ. द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट, हु कैन हेल्प यू फाइंड दैट बुक, जो तुम्हें उस बुक को ढूंढने में मदद कर सकता है. सो दैट इज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बिकॉज इट इज़ गिविंग एसेंशियल ज़रूरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन. सेकेंड इज, वी विश टू लिव इन अ प्लेस, हम ऐसी जगह पर रहना चाहते हैं विच इज़ नॉट टू फार अवे फ्रॉम द सी, जो समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर ना हो. सो हेयर इट इज़ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बिकॉज इट इज़ गिविंग एसेंशियल ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे रही है अबाउट द प्लेस, दैट द प्लेस शुड नॉट बी टू फार फ्रॉम द सी, कि जो प्लेस है वो समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए. Next definition is of non-defining relative clause. So the definition is, it gives us extra information about the person or thing which is being referred to in a sentence. जो भी व्यक्ति या जो भी चीज़ सेंटेंस में रेफ़र की जा रही है, संबोधित की जा रही है, सो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज जो होती हैं वो उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हैं. मीन्स जो इन्फॉर्मेशन सफिशेंट है वो हमारे पास ऑलरेडी है, बट दे आर गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. अ सेंटेंस मेक्स अ कंप्लीट सेंस विदाउट दिस क्लॉज, और इस क्लॉज के बिना भी एक सेंटेंस जो है वो अपना सेंस कंप्लीट कर सकता है. सो द एग्जाम्पल इज, आई एम गोइंग टू मीट संजय, द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज कंप्लीट, मैं संजय से मिलने जा रहा हूँ. हु हेल्प्ड मी विद द होटल बुकिंग, जिसने मेरी मदद की थी होटल बुकिंग में. नेक्स्ट इज, वी स्टेड एट नेचर्स नेस्ट, हम नेचर्स नेस्ट में रुके थे, विच इज़ एन आइडलिक सी साइड रिजॉर्ट, जो कि एक आइडलिक सी साइड रिजॉर्ट है. सो इन बोथ एग्जाम्पल्स द इंफॉर्मेशन विच इज़ बीइंग गिवन, दैट इज additional information, extra information. So if the information will not be given, then also the sense of the sentence will be completed. So this was the definition of defining relative clause and non-defining relative clause. Now let's see the exercises. So exercise C is, complete the sentences using relative clauses and identify them as defining or non-defining. So what you all have to do, first of all you have to complete the sentences using relative clauses. Relative clauses के use से sentences को complete करना है. Then we have to identify that they are defining clauses or they are non-defining clauses. So the first one is, the television which I bought recently malfunctioned. सो द टेलीविजन विच आई बॉट, वो टेलीविजन जो मैंने ख़रीदा, रिसेंटली ख़रीदा था, हैज़ मॉल फंक्शनड, मीन्स असमय उसने कार्य करना बंद कर दिया. सो दैट इज़ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बिकॉज इट इज़ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन, एंड द नाउन इज़ टेलीविजन. सो जो टेलीविजन मैंने अभी ख़रीदा था उसने रिसेंटली काम करना बंद कर दिया है. सेकेंड सेंटेंस इज, ललिता हुज, ललिता जो जिसके, फादर इज़ इन आर्मी, फादर आर्मी में है, इज ट्रेनिंग एज फाइटर पायलट, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं फाइटर पायलट की. सो हेयर इट इज़ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. ओके, सेकेंड ऑन थर्ड नंबर इट इज़ रिटन, शी इज़ लुकिंग फॉर अ पार्सल वेयर शी कैन पुट अप फॉर द नाइट. सॉरी, शी इज़ लुकिंग फॉर अ प्लेस वेयर शी कैन पुट अप फॉर द नाइट, वो एक ऐसी जगह ढूंढ रही है जहाँ पर वो पूरी रात के लिए रुक सके. सो इट इज़ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बिकॉज शी इज़ लुकिंग फॉर अ प्लेस, वो एक ऐसे प्लेस को ढूंढ रही है जहाँ पर वो पूरी रात रुक सके. सो द मीनिंग इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट द रिलेटिव क्लॉज. ऑन फोर्थ नंबर द सेंटेंस इज रिटन, माई ग्रैंड फादर हु इज़ 80 ईयर्स ओल्ड कैन सिंग वेरी वेल, मेरे ग्रैंड फादर जो 80 ईयर्स ओल्ड हैं वो बहुत अच्छा गाते हैं. सो दैट इज़ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बिकॉज इट इज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्रैंड फादर.
ऑन फिफ्थ नंबर द सेंटेंसेस, द पर्सन विद होम यू आर टॉकिंग इज़ नॉट टू बी ट्रस्टेड, वो व्यक्ति जिसके साथ तुम बात कर रहे हो वो भरोसे के लायक नहीं है. So that is defining relative clause, because what type of a person? The person is not trustable, so that is defining relative clause. On sixth number the sentence is, I am scared of what she will say about this mess, मैं डर गया हूँ कि वो इस मैस के बारे में, इस गड़बड़ के बारे में क्या कहेगी. So I am scared of, किससे डरा हूँ मैं? She will say about, what she will say about this mess. So that is defining relative clause. Let's see the next exercise. Next is exercise D. Underline the relative clauses in these sentences and make correction in the use of relative pronouns and adverbs. First of all, we have to underline the relative clauses in the sentences, and then we have to make correction in the use of relative pronouns and relative adverbs. So the first sentence is, New Zealand is the country when I want to live when I grow up. So when I have explained the chapter, that time I have explained you, then when we are talking about the place, so we use where. Okay, that is a relative adverb. So New Zealand is the country, New Zealand वो country है where I want to live, जहाँ मैं रहना चाहता हूँ, where I grow up. So यहाँ पर when नहीं आएगा because we are talking about a place, so that's why यहाँ पर हमारा where आएगा. When we use when we are talking about the time, so here we are talking about place, so that's why where. New Zealand is the country where I want to live when I grow up. Second sentence is, this is the reason which I have to be careful about my health. ये वो reason है which I have to be careful, जिसके बारे में मुझे जिसकी वजह से मुझे अपनी हेल्थ के बारे में केयरफुल रहना होगा. सो हेयर विच वी यूज़ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ थिंग, जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. सो हेयर रीज़न, सो दैट मीन्स वी हैव टू फिल विद एडवर्ब ऑफ रीज़न, दैट इज़ वाई. That is relative adverb why. This is the reason why I have to be careful about my health. ये वो वजह है जिसकी वजह से मुझे अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना होगा. नेक्स्ट इज, अर्पित इज़ द फ्रेंड विच आई एन्जॉयड प्लेइंग बैडमिंटन विद. अर्पित वो दोस्त है जिसके साथ मुझे बैडमिंटन खेलना मैं पसंद करता हूँ या एन्जॉय करता हूँ. सो हेयर अर्पित इज़ अ पर्सन, सो अर्पित के साथ हम क्या लगाएंगे? वह व्यक्ति है. होम मीन्स जिसके साथ. अर्पित इज़ द फ्रेंड होम आई एन्जॉयड प्लेइंग बैडमिंटन विद. अर्पित वो दोस्त है जिसके साथ मैं बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूँ, एन्जॉय करता हूँ. सो एट द प्लेस ऑफ विच वी हैव टू यूज़ होम. ऑन फोर्थ नंबर द सेंटेंसेस, दिस इज़ द सेम सिंगर हु एल्बम माई मदर रिसेंटली बॉट. ये वही सिंगर है जिसकी एल्बम मेरी मदर ने रिसेंटली खरीदी है. सो एट द प्लेस ऑफ हु हमें यहाँ पर पोजेसन दिखाना है कि एल्बम किसकी खरीदी गई है? सिंगर की. सो वी विल यूज़ हुज. हुज का यूज़ हम करते हैं टू शो पोजेसन. सो दिस इज़ द सेम सिंगर हुज एल्बम माई मदर रिसेंटली बॉट. ये वही सिंगर है जिसकी एल्बम मेरी मम्मी ने रिसेंटली खरीदी है. ऑन फिफ्थ नंबर द सेंटेंसेस, हरीश इज़ द एथलीट विच आई मैट इन द पार्क वाइल जॉगिंग. हरीश वो एथलीट है जिससे मैं मिला था जब मैं पार्क में जॉगिंग कर रहा था. सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट हरीश एंड हरीश इज़ अ पर्सन, दैट्स वाई यहाँ पर हमारा होम आना चाहिए जिसे मैं मिला था. विच हम यूज़ करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ थिंग. हरीश इज़ द एथलीट होम आई मैट इन द पार्क वाइल जॉगिंग. हरीश वो एथलीट है जिसे मैं मिला था जब मैं पार्क में जॉगिंग कर रहा था. सो दीज वर डेफिनेशंस एंड एक्सरसाइजेज रिलेटेड to relative clauses only. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. So I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.